Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continuing with Neoclassicism, studying the first age from this, and that's Restoration Age. And this is going to be the last class on Restoration Age. We have the four writers here to discuss. We were continue with the discussion on the big five from the Restoration Comedy and could complete the three out of them. What were the names, Dolly? Wycherley, Congreve, Etheridge. Okay, it's the Wycherley, Congreve and Etheridge. The two are left. Can you tell it, Vishnu? Vanbrugh and Farquhar. Okay, so the two are left that we will study. Along with them, we have to discuss on John Locke and Aphra Behn. They all belong to this Restoration Age. Well, when it started, the Neoclassicism, we could see that the writers from England were modeling themselves on the French literature. Primarily, the writers like Rapin, Boileau, Voltaire, they had been the inspiration, but through these works we will find some more qualities of this Restoration Comedy. Restoration Comedy is primarily known for its new theme, the theme like witty dialogues called repartee, especially the affairs, family intrigues. Soon these topics were shifted to marriage. No doubt some women writers like Aphra Behn, they start questioning the thinking of man's society over the work of women, how they estimate. So the first writer among our discussion is going to be George Farquhar. Especially for his three plays, he is remembered. One point that is related to his career is actually the Spanish War of Succession. George Farquhar, especially related to the War of Spanish Succession. Why this war is important and why are we discussing? Remember,
When George Farquhar was writing, almost started writing as a literary career, he had the theatre full of comedies. Already William Y. Shirley was there, George Etheridge was writing, William Congreve had his own handling power over theatre. So it seemed difficult for any newcomers to make plays. Instead, he tried and he was successful in almost 3 plays of his are very big named. But why I have discussed this one? Because one of his play, The Recruiting Officer, is actually based on his experience when he himself was working as a recruiting officer in England. Actually, this war that took place from 1701 to 1714 is in many conditions very special. Generally considered as the First World War of modern time. Why do we name it? Many scholars think that this war of Spanish succession was, in a sense, the First World War of modern time. Why is this? Because the 3 countries were the part of this war. The one is Spain, as the name is there, Spain. The next is Italy, and the next one is Germany. Well, it seems like the world war that we later faced, especially in 20th century, from 1914 to 1918, that is the extended version of this one. And this is a special event during the rule of Queen Anne. Remember, with the death of Queen Anne in 1714, the German cousin of her, George I, becomes the ruler of England. Somewhere this succession, no doubt England was not part of it. Neither, means there are 3 countries, Ireland, Scotland and England. Now during this phase of rule of Queen Anne, with the Act of Unity that was passed in English, Abhay, Vishnu, 1707. 1707, for the first time, Britain was formed in a modern sense, like a British. The 3 countries were put together, especially Scotland and England, and the settlement is still continue. So Britain was not part of it, but somewhere the question of British rule was also there. Whoever will succeed this Spanish succession will have a chance to become the ruler of Britain as well, because Queen Anne was childless, and that later becomes possible with the succession of George I. तो इसलिए इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जॉर्ज फकुआर की एक प्ले जो द रिक्रूटिंग ऑफिसर है वो इससे प्रभावित होती है. Some events and points related to the life of George Farquhar are very interesting. Actually, he was at first the actor.
and as an actor he had a chance to act in Macbeth of William Shakespeare. मैकबेथ में एक कैरेक्टर है लेनॉक्स, है ना, लेनॉक्स का रोल इन्होंने किया था. सेकेंड वन है द मैन ऑफ मोड. किसने लिखा था डॉली? द मैन ऑफ द मोड. नो, जॉर्ज एथरिज, द मैन ऑफ मोड. इसमें भी उन्होंने रोल किया था यंग ब्लेयर का. नेक्स्ट है फिलास्टो. हु रोट दिस वर्क? सत्यम. अविनाश. बेस्ट एग्जांपल है ट्रेजी कॉमेडी का. एग्जैक्टली. और ये ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर का कोलैबोरेशन. वेरी गुड. ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर का ये कोलैबोरेशन रहा है एंड सपोज टू बी द फॉरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी विद विच सीम्स टू बी स्टार्टिंग. और इस वर्क में लॉर्ड डायन का रोल इन्होंने किया था एंड द इंडियन एम्परर. This was the work of John Dryden, the Indian emperor. So these four works, the plays were where George Farquhar acted, but he couldn't receive great success. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये एक्टिंग नहीं, चलो राइटिंग करते हैं. और ये सारी एक्टिंग हुई रॉबर्ट विल्क्स की वजह से. इनको हमें याद रखना पड़ेगा जब भी हम जॉर्ज फर्कुआर को डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि रॉबर्ट विल्क्स उस टाइम के सबसे बड़े एक्टर थे और जॉर्ज के भी कई प्लेज में रॉबर्ट ने रोल किया. कुछ प्लेज तो इतने इम्पॉर्टेंट हुए सिर्फ इनकी एक्टिंग की वजह से. लंदन चल पड़े और ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज ने जब लंदन के लिए डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं लंदन की ओर, प्ले राइटिंग करना शुरू करेंगे, तो इनके हाथ में शायद इनका पहला जो प्ले था उसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स रहे होंगे जो इन्होंने लिखे होंगे, जिसका नाम था लव एंड अ बैटल. It's a bottle, not battle actually. Love and a bottle. The play that was there in 1696. Love and a bottle. रॉबर्ट विल्क्स के कार्य की क्यों बात करेंगे हम, पागल लड़की. वो तो सिर्फ एक्टर थे एंड अ फ्रेंड ऑफ जॉर्ज फर्कुआर थे, जिन्होंने कहीं न कहीं जॉर्ज फर्कुआर को एक्टिंग के लिए इंस्पायर भी किया था. और साथ ही साथ जॉर्ज के कई प्लेस थे जिनमें बहुत अच्छा उन्होंने रोल भी प्ले किया था. आगे हम डिस्कस करेंगे इसको. तो लव एंड अ बॉटल जो था वो इनका पहला कॉमेडी था. दैट वाज सक्सेसफुल कई वजहों से हुआ. कई लोगों ने कहा कि इसमें लाइसेंसियस थीम थी, इस वजह से सक्सेसफुल हुआ. कुछ लोगों ने कहा कि ये थोड़ा सा स्टॉक कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, फिर भी ये सक्सेसफुल था. लेकिन कुछ पॉइंट्स जो इसके थे वो थे बहुत तेज़ी से शिफ्ट होने वाले सीन्स, मतलब तेज़ी से सीन शिफ्ट हो रहे थे, इस वजह से भी एक अलग एक्सपीरियंस था. इसके बाद इन्होंने कुछ और भी प्ले लिखे, जैसे 1700 में इनका आया द कांस्टेंट कपल. ये अच्छा सक्सेसफुल रहा. कांस्टेंट कपल इन 1700.
was a great success as a comedy once again. स्पेशली इसमें कैरेक्टर रहे हैं सर हेनरी वेल्डेयर। सर हेनरी वेल्डेयर का वो कैरेक्टर जिसको रॉबर्ट विल्क्स ने प्ले किया था वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। मैंने आपसे कहा कि कुछ प्लेज इनके ऐसे रहे हैं जो एक्टिंग की वजह से, रॉबर्ट विल्क्स की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए। तो पहला प्ले भी सक्सेसफुल, दूसरा भी प्ले सक्सेसफुल। वेल्डेयर, वेल्डेयर, सर हेनरी वेल्डेयर वो कैरेक्टर था जो इस प्ले में था, द कांस्टेंट कपल में, और रॉबर्ट ने इतनी खूबसूरती से उसको प्ले किया कि बहुत ही पॉपुलर हो गया। कितना पॉपुलर ऐसे समझिए। किससे प्रभावित होकर के जॉर्ज फकवार ने एक और प्ले लिखा, हालांकि वो फेल्ड हो गया। दैट वाज सर हैरी वेल्डेयर। हेनरी की जगह हैरी कर दिया, सर हैरी वेल्डेयर। इसके साथ छोटे छोटे 2-3 प्ले और लिखे इन्होंने, जैसे द इनकॉन्स्टेंट और द ट्विन राइवल्स। द इनकॉन्स्टेंट और द ट्विन राइवल्स अलग अलग हैं। द इनकॉन्स्टेंट एक प्ले है, दूसरा है द ट्विन राइवल्स। 1702 में इनका एक कलेक्शन आता है जिसका नाम था लव एंड बिजनेस। लव एंड बिजनेस ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन में इनकी कुछ पोएम्स भी थी, लेटर्स भी थी, और एक इन्होंने क्रिटिकल वर्क भी लिखा था, अ डिस्कोर्स अपॉन कॉमेडी। डिस्कोर्स अपॉन कॉमेडी। इधर भी ऐसा लगने लगा जैसे जॉर्ज फकवार जो अपनी राइटिंग थी उसमें थोड़े से स्लो पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें रिक्रूटिंग ऑफिसर बना दिया गया था। स्पेनिश सिविल वार के लिए नए सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। इस बीच उन्होंने पीटर मोटेक्स के साथ कोलैबोरेशन किया। पीटर मोटेक्स के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने प्ले लिखा द स्टेज कोच। हालांकि ये बहुत पॉपुलर नहीं रहा, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट इनका जो आया द रिक्रूटिंग ऑफिसर। इनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस था। दैट कम्स इन 1706। फिर से थोड़ी इन्होंने डिस्टेंस बना लिया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि 1707 में ही जॉर्ज फकवार की डेथ हो जाती है, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। 1707 के शुरुआत में ही जॉर्ज फकवार जो थे वो थोड़े बीमार थे और बिस्तर पे लेटे हुए थे। तभी उनके फ्रेंड रॉबर्ट विल्क्स आते हैं और उनसे कहते हैं यार कि कुछ तुम लिखो, बहुत दिन हो गया एक अच्छी एक्टिंग किए हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पहले लिखा हुआ था तो उसको मुझे इतने कमज़ोर हो गए थे। इन्होंने भी स्टेटमेंट में आपको पढ़ सुनाएगा, कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैंने उसमें सुधार भी नहीं किया, और फिर उसको प्रीमियर्ड करा दिया, मतलब मार्च में 1707 में उसका प्रोडक्शन करा दिया। द प्ले वाज द ब्यूक्स स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम
March 1707. जैसे मैंने कहा कि इस प्ले की क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट थी, क्योंकि अगले महीने अप्रैल में जॉर्ज फकवार की डेथ हो गई और मार्च में ये प्ले का परफॉर्मेंस होता है। जॉर्ज फकवार इस प्ले के परफॉर्मेंस के बाद कहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट था, मैं उसको आपको रीड कर दे रहा हूँ। द रीडर में फाइंड सम फॉल्ट्स इन दिस प्ले which my illness prevented the amending of, but there is great amends made in the presentation which cannot be matched, no more than the friendly and indefatigable care of Mr. Wilkes, to whom I chiefly owe the success of the play. मतलब जब प्ले सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने एक तरह से अपना आभार प्रकट किया था रॉबर्ट विल्क्स के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों ने पसंद किया, इसे अच्छी बात है, बट सही बात तो यह है कि इसमें कुछ गलतियां भी हैं, है ना, लेकिन वो मेरी बीमारी की वजह से मैं उसमें सुधार नहीं कर पाया। और जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो रॉबर्ट विल्क्स की मदद से हो पाया है, अगर वो ना होते तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से अपने आखिरी प्ले, इनके 3 प्ले बड़े फेमस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला द कॉन्स्टेंट कपल, दूसरा द रिक्रूटिंग ऑफिसर और तीसरा द ब्यूक्स स्ट्रेटजम। ये 3 बड़े ही फेमस इनके वर्क्स रहे थे। ठीक है, ओके। अब चले आते हैं सर जॉन वैनब्रो के लिए। याद रखेंगे कि सर जॉन वैनब्रो इज गोइंग टू बी द लास्ट एमंग द बिग 5 ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर और रेस्टोरेशन कॉमेडी। The 4 we have already covered, including William Y. Shirley, George Etheridge, George Farquhar, and William Congreve. John Vanbrugh was actually a Whig. मतलब यह है कि इनको डिस्कशन करना शुरू किया और मैंने पॉलिटिकल इशू सामने रख दिए, क्योंकि एक्चुअल में जॉन वैनब्रो जो थे वो जेम्स सेकंड को अपोज करने के लिए जाने जाते हैं, उनका विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, और दूसरा जाने जाते हैं अपनी अटैकिंग पॉलिटिकल स्किल की वजह से। तो मैंने पॉलिटिकल इशू ही रख दिया पहले कि आप समझ लीजिए कि ये किसके सपोर्टर है। वो का मतलब किसके थे? पार्लियामेंट के सपोर्टर। और पार्लियामेंट किसको रूलर बनाई थी? किंग विलियम III को। इसका मतलब ये था कि किंग विलियम III के भी ये सपोर्टर थे और इन्होंने अपोज किया था जेम्स सेकंड को। इसका इन्हें फ़ायदा भी मिला। 1714 में ही वॉज नाइटेड। इनको नाइट की उपाधि 1714 में मिलती है। नाइटेड in 1714। ओके,
स्पेशली इनका जो अटैक हुआ, जेरेमी कॉलियर ने इनके ऊपर अटैक किया था। जेरेमी कॉलियर का एक वर्क आया था जिसका नाम था शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी, शॉर्ट व्यू ऑफ द immorality and profaneness of the English stage, and profaneness of the English stage। इस वर्क में जेरेमी कॉलियर ने अटैक्ड वैनब्रो की राइटिंग स्किल पर उन्होंने अटैक किया कि मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक्टिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। हालांकि वैनब्रो के बारे में कहा जाता है कि ही वाज एन आर्किटेक्ट एज वेल। और इनका आर्किटेक्ट कुछ इस तरह से असरदार था कि इंग्लैंड में एक अलग टाइप का आर्किटेक्ट बनना शुरू हुआ था जिसको हम लोग बैरक कहते हैं, एंड वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश बैरक। बैरक राइटिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज एंथ्रेलिंग, something that is bewildering and somewhere bewitching as well। मतलब ये आर्किटेक्ट से रिलेट है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि आर्किटेक्ट मतलब जिसको हम लोग स्थापत्य कला कहते हैं, तो ये कुछ आर्किटेक्ट के भी रूप में जाने जाते हैं। और जिस तरह के आर्किटेक्ट को इन्होंने शुरू किया उसे बाद में इंग्लिश बैरक का नाम दिया गया। बैरक मैंने आपको बताया, इंग्लिश तो आप समझ रहे हैं, अंग्रेज़ों के यहाँ जो शुरू हुआ। बैरक एक तरह का आर्किटेक्चरल पैटर्न है, आर्किटेक्चरल पैटर्न, जिसके अंदर ये खासियत थी कि वह किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत जिसको देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी जब साउथ गया था इस साल, तो मैंने साउथ में जितने टेम्पल देखे, चाहे वो पद्मनाभेश्वर स्वामी का रहा हो, चाहे वो रामेश्वरम का रहा हो, चाहे वो एक मीनाक्षी टेम्पल है ना, ये सारे टेम्पल मैंने देखे और रियली शॉकिंग। मतलब मैंने एक दिन और चर्चा किया था कि टेम्पल तो साउथ वालों ने ही बनाए, नॉर्थ वालों ने तो बिजनेस किया है। मैं तो सीधा बोलता हूँ। टेम्पल जिसको कहते हैं जिसमें भव्यता है, जिसमें दिव्यता है, जिसको एंटर करने के बाद, जिसको देखने के बाद आपको लगे कि नहीं रुको यार, ठहरो, थोड़ा देखते हैं, इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं, जिसको देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे बनाया गया होगा, है ना। ऐसी चीज़ें वहाँ पर हैं। अभी मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो इमारतें बनी हैं, आप देख करके आपको लगेगा हाँ ठीक है यार, इसको तो बना लिया गया होगा, लेकिन उसको देख करके लगता है कि यार बनाया कैसे गया होगा, है ना। और इतने बड़े बड़े बनाए हैं, इतने व्यवस्थित तरीके से बनाए हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ऑडियंस जो हमारे वो होते हैं दर्शनाभिलाषी पिलग्रिम्स ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी भीड़ लग जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है ना। वहाँ पर 4-4 गेट बना रखे हैं और इतना लंबा स्पेस देकर बना कर रखा हुआ है कि आप एंट्री करो, गर्मी तो लगनी नहीं है, इतना स्पेस। मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू कि क्या बैरक होता है, बैरक इसी को कहते हैं। और बैरक राइटिंग भी होता है।
जब ऐसी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आप अपनी लेख में देते हैं, जैसे जॉन मिल्टन साहब ने जब हेल की डिस्क्रिप्शन दी है, तो हेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सच में ये तो बिवाइल्डरमेंट से भरा हुआ है। मतलब ऐसा नर्क की दुनिया हो सकती है, हेल की दुनिया हो सकती है। तो ऐसी कोई भी आर्किटेक्चर जो आपको बिवाइल्डर्ड कर दे, जो आपको अट्रैक्ट कर ले, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे, इट्स कॉल्ड टू बी बैरक। तो इंग्लिश बैरक को शुरू करने का क्रेडिट किसी को जाता है तो इट इज़ जॉन वैनब्रो। इनके दो तरह के खास विषय थे, एक मैंने आपसे कहा पॉलिटिकल, दूसरे इनके मैरिज थीम थी। दो इनके विषय थे, एक पॉलिटिकल और दूसरा मैरिज थीम। मैंने आपसे बताया था उस समय एक फैशन चल गया था, कोई भी यंग लैड किसी भी बुज़ुर्ग महिला से भी शादी करके अपने आप को सेटल्ड कर लेता था, तो वो कुछ इनके साथ भी था। चलिए बात करते हैं इनके पहले सक्सेसफुल प्ले द रिलैप्स के बारे में। जब भी हम लोग बात करते हैं द रिलैप्स के बारे में, तो इसका सब टाइटल होता है वर्च्यू इन डेंजर। This was actually sequel to one of plays by Colley Cibber. Colley Cibber का एक प्ले था जिसका नाम था Love's Last Shift. Love's Last Shift. This was a work by Colley Cibber. इस वर्क का ये क्या था? सीक्वल। आमतौर पे आप क्या देखते हैं कि सीक्वल वही लिखता है जिसका प्रीक्वल होता है ना। मतलब जिसने पहला पार्ट लिखा है वही दूसरा पार्ट लिखता है। आमतौर पे आपने यही देखा होगा। यहाँ क्या हो रहा है? अलग। पहला पार्ट लव्स लास्ट शिफ्ट लिखा था कॉली सीबर ने, जिनको हम आप लोग ऑगस्टन एज में डिस्कस करेंगे कॉली सीबर को। लेकिन उसका सीक्वल द रिलैप्स के रूप में लिखा जॉन वैनब्रो ने, और उसका टाइटल दिया वर्च्यू इन डेंजर। क्यों? क्योंकि लव्स लास्ट शिफ्ट जो था इसका टाइटल था वर्च्यू रिवार्डेड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम, जान रहे थे वहीं जाओगे। दौर ही वही है ना, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग पामेला को बात करेंगे, ऑगस्टन एज में सब आएंगे। ठीक है, तो उसी दौर से कॉली सीबर भी हैं। क्योंकि मैरिज थीम जॉन वैनब्रो लिखते थे, तो इन्होंने ये दिखाया कि मैरिज में जो वीमेन की कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। और कहीं न कहीं इन्होंने सजेस्ट भी किया कि मैन एंड वीमेन शुड लिव इन अ टुगेदरनेस। द वर्क अपीयर्ड इन 1696। दूसरा प्ले इनका बड़ा फेमस रहा द प्रोवोक्ड वाइफ। द प्रोवोक्ड वाइफ 1697 में ये इनका प्ले आता है। इसमें एक्चुअली मैरिज के अब्यूजेस को दिखाया गया। वैसे तो कोशिश इन्होंने किया है कि दोनों और इक्वल होते हैं, बट एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी जिनका नाम था एलिजाबेथ बैरी।
एलिजाबेथ बैरी ने जिस तरह से एक्टिंग किया था, तो जो एक्ट्रेस की एक्टिंग थी उसकी वजह से लगता है जो प्रोवोक्ड वाइफ, जो टाइटल्ड लेडी हैं, उनकी लाइफ बड़ी मेजरेबल दिखाई गई, बड़ी दयनीय दिखाई गई। तो जो हम लोग सोचते थे कि इन्होंने डिफेंड किया होगा, हालांकि ये कॉमेडी है, लेकिन कई लोगों ने कहा कॉमेडी नहीं है प्रोवोक्ड वाइफ, एक्चुअली ये ट्रेजी कॉमेडी है ना। कई लोगों ने कहा कि उस समय की ये ट्रेजी कॉमेडी है, हालांकि लिखा इसको कॉमेडी के रूप में गया था, लेकिन कई स्कॉलर्स को मानने लगे कि ये ट्रेजी कॉमेडी है। जॉन वैनब्रू के कुछ और भी वर्क्स थे, जैसे एशोप आया था, AESOP, एशोप, यह भी प्रोवोक्ड वाइफ के ईयर में भी आया था, 1697 में। नेक्स्ट आया था द फॉल्स फ्रेंड, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। द फॉल्स फ्रेंड इन 1702 आया था। नेक्स्ट था द कॉन्फेडरेसी, CONFEDERACY, कॉन्फेडरेसी 1705 में आया। और था फिर द मिस्टेक, भी 1705 में ही आता है एज अ प्ले। तो ये कुछ माइनर प्लेस थे, जो इनके मेन प्ले हैं वो दो हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, द प्रोवोक्ड वाइफ और द रिलैप्स। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन लॉक के बारे में। मैक्सिमम लोग जॉन लॉक को जानते हैं, स्पेशली इनकी जो लिबरल राइटिंग थी उसके लिए। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म इनको माना जाता है। समवेयर ही फॉलोड फ्रांसिस बेकन टू प्रेजेंट एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म के बारे में ऑलरेडी फ्रांसिस बेकन ने बात किया था, और ही वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। उसी ग्रुप से, उसी ट्रेंड से जॉन लॉक भी हैं, साथ साथ जॉन लॉक के सर थॉमस ब्राउने भी थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था सर थॉमस ब्राउने को भी। और एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या होता है अखिलेश? इजी टर्म है विष्णु। सत्यम? हाँ, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दैट वी रिसीव एंड प्रेजेंट इट इन आवर वर्क्स ऑफ लिटरेचर, कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव वर्क हो जाता है जिसको हम राइट करते हैं, तो एम्पिरिसिज्म कहलाता है। फ्रांसिस बेकन साहब ने शुरू किया। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा है, और जितने भी प्रैक्टिकल राइटर्स हैं सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन अब ठीक है, उतना जानते रहेंगे हम लोग, है ना। हाँ बिल्कुल आया होगा, जॉन लॉक का ही पॉइंट। ओके, इनकी राइटिंग से दो बड़े फ्रेंच राइटर्स प्रभावित थे, फ्रैंकोइस, मैरी ऑरोविथ। वोल्टेयर।
इनका पूरा नाम जो है फ्रैंकोइस मैरी अरोविथ है। हाँ, ये पूरा नाम है इनका, और ये टाइटल है वोल्टेयर, जिससे स्पेशली इनको हम जानते हैं। वोल्टेयर कहते हैं ना हम लोग, वोल्टेयर, तो ये इनका पूरा नाम है फ्रैंकोइस मैरी अरोविथ। दूसरे हैं जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, ये दो स्कॉलर्स थे जो दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर्स के रूप में जाने जाते हैं। दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम, जॉन लॉक की राइटिंग से ये इंस्पायर्ड थे। जॉन लॉक ने इनको अपनी राइटिंग से प्रभावित किया था। दो बहुत बड़े वर्क। जॉन लॉक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी एंड सेल्फ। इनका डिस्कशन आया था आइडेंटिटी एंड सेल्फ। आइडेंटिटी पर तो कई लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन सेल्फ पर डिस्कस करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। से कई लोग क्या मानते हैं ना, आइडेंटिटी और सेल्फ दोनों के एक मानते हैं, है ना, बट इन्होंने दोनों को डिफरेंशिएट किया और सेल्फ पर डिस्कशन करने वाले ही वाज द फर्स्ट मैन। एक थियरी है जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फिलॉसफी। कार्टेशियन फिलॉसफी जानते हैं आप लोग? कार्टेशियन फिलॉसफी क्या कहता है? ये दोनों बातें होती हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड के बारे में, ठीक है ना। एक और कार्टेशियन फिलॉसफी है, न्यू बॉर्न को लेकर के, न्यू बॉर्न को लेकर। कार्टेशियन फिलॉसफी क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन वन इज बॉर्न, माइंड जो है वो चाइल्ड का ब्लैंक नहीं होता है। इंस्टेड देयर आर मैनी थिंग दैट द चाइल्ड बॉर्न हैज ऑलरेडी लर्न्ड, है ना। मतलब ये कहते हैं कि जब एक न्यू बॉर्न आता है कार्टेशियन फिलॉसफी में, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि माइंड जो होता है न्यू बॉर्न का वो ब्लैंक नहीं होता है, बल्कि इस माइंड में कुछ चीज़ें ऑलरेडी फुल होती हैं, भरी होती हैं। कुछ बातें जो वो माँ के गर्भ से सीख कर आता है, जो आज की साइकोलॉजी भी मानती है। हम सारे लोग जानते हैं कि आज की साइकोलॉजी में ज़्यादातर कार्टेशियन फिलॉसफी की ही बात होती है, बट जॉन लॉक ने इसको इग्नोर किया था। आपको मालूम है? हाँ, जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है ना, वो माइंड लेकर पैदा तो होता है, लेकिन ये ब्लैंक होता है। कैसे ब्लैंक? जैसे कि टेबल होता है ना, स्लेट जिसको हम लोग कहते थे पहले, ठीक है ना। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था टैबुला रासा। टैबुला रासा, ये जॉन लॉक ने दिया टैबुला रासा। इन्होंने कहा कि जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसका माइंड एंटायरली ब्लैंक नहीं होता है, एंटायरली ब्लैंक होता है। मतलब वह माँ के एक्सपीरियंस से कोई वास्ता नहीं रखता, या माँ के गर्भ में वो कुछ भी सीखकर नहीं आता है। उसका सारा नॉलेज जो होता है वह इनबॉर्न नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस ब्रॉट होता है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, है ना। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे कार्टेशियन फिलॉसफी कहती है कि नहीं, जब कोई पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके माइंड में बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है। ये कहते हैं नहीं,
जब कोई बॉर्न होता है ना तो टैबुला रासा होता है, मतलब उसका जो माइंड होता है पूरी तरह से ब्लैंक होता है। फिर हमारी दुनिया में जब वो आता है तो वह क्या करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उसका नॉलेज आता है, मतलब उसके पास पहले से कोई नॉलेज नहीं होता है, वो ब्लैंक माइंड होता है। ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। ये फ्रेज है जॉन लॉक ने, इधर सब जॉन लॉक है, उधर है कार्टेशियन फिलॉसफी। हालांकि दोनों पॉइंट्स को अगर समझा जाए तो अलग अलग तरीके से बातों को कहा गया है। अगर हम कार्टेशियन फिलॉसफी की बात करें तो वो बहुत हद तक मॉडर्न फिलॉसफी के करीब हैं। जिस बात को उन्होंने कहा था कि नो डाउट हम बहुत सी चीज़ों को बाहर आने के बाद सीखते हैं, लेकिन ये कहना कि माइंड ब्लैंक होता है जब कोई बॉर्न आता है या पैदा होता है, ये इनके अनुसार गलत है। ऐसा हमारी कथाओं में भी है। आप जानते ही हैं कि अभिमन्यु की कहानी है, जिन्होंने बाहर आकर के चक्रव्यूह के बारे में कुछ नहीं जाना था, लेकिन माँ की गर्भ में रहते हुए ही सब कुछ उन्होंने जान लिया था, जितना जानकारी उनको हुई। इसी तरह के आज के फिलॉसफी में भी अगर आप देखें तो डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं, जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है उनको कहा जाता है कि इनके सामने, इनके आसपास अच्छे माहौल बना कर रखिए, क्योंकि इसका असर चाइल्ड जो है उसकी ग्रोथ पर होता है। धार्मिक किताबें पढ़िए, है ना, क्योंकि उससे जो होता है माइंड पीसफुल रहता है। लेकिन हमारी महिलाएं आजकल क्या देखती हैं, टीवी शो, है ना, डेली सोप, अब तो जब से मोबाइल आ गया तब से रील्स, तो बच्चे भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं, है ना। हाँ, आप देखिए तो बच्चे वैसे ही पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही मोबाइल के प्रति उसका लगाव इतना ज़्यादा है कि मम्मी की ऐसी तैसी, मम्मी जाए किनारे मोबाइल दे दें बस, है ना। हाँ, आप टीवी भी नहीं देख रहे, तो मोबाइल व्यवस्था ऐसी हो गई ना कि सब जगह जा सकती आ सकती है। तो आप समझिए, हम लोग कहते हैं ना कि कैसे इनको मालूम है, इनको मालूम है हमारे ज़रिए, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। हमारे यहाँ एक फ़िलॉसफी थी, अगर आप लोग समझे होंगे, सुने होंगे कभी, अब बड़ों का पैर क्यों छूना चाहिए। उसमें एक फ़िलॉसफी दी जाती थी कि बहुत से एक्सपीरियंसेस जो बड़ों के पास होता है, वो आप अगर उनका पैर छूते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो वो आप में ट्रांसफ़र होती हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती हैं। मम्मी पापा के गुण, आपके दादा दादी के गुण, आपके नाना नानी के, जो भी आपके आसपास हैं, उनके ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो आज की जनरेशन है वो कार्टेशियन फ़िलॉसफी पर है, क्योंकि किसी ने अपने बच्चे को मोबाइल खोलना नहीं सिखाया, और वो सब जानता है, यहाँ तक कि हमसे आपसे तेज जानता है, क्योंकि उसने उस स्थिति में लर्न किया है जिस स्थिति में दिमाग सबसे तेज बढ़ता है। आपको मालूम है ना, सबसे तेज ग्रोथ वहीं होती है, माँ के गर्भ में ही होती है। 9 महीने में जितना वो बड़ा हो जाता है उतनी ग्रोथ उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं होती है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रोथ घटती चली जाती है, चाहे वो शरीर की हो और चाहे वो दिमाग की हो। तो दिमाग का भी ग्रोथ अंदर ही होता है। तो जो इन्होंने कहा वो फिलॉसफी तो आजकल बहुत लोग मानते हैं, लेकिन उस समय इन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि देखिए, माइंड जो होता है ब्लैंक होता है। आप जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे उसको एक्सपीरियंस होते जाते हैं उस तरह से वो बनता चला जाता है। ये उसका आउटर एक्सपीरियंस होता है, जो इनका मानना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर माइंड में कुछ चीज़ पहले से भरी है तो समझाया नहीं जा सकता। जैसे हमारी औरतें होती हैं, है ना, अगर उन्होंने मान लिया कि ये बंदा विश्वास के काबिल नहीं है तो उसको 1000 आप सबूत दे दीजिए, सबूत मान के, देख करके भी, सुन के भी, जान के भी नहीं मानेंगी कि आप सही हो। क्यों? ऑलरेडी फुल पहले से भरा है ना। और अगर ये ऑलरेडी फुल ना हो तो जो बात आप बताएंगे वो बातें उनको समझ में आ जाएगी। दैट इज़ द पॉइंट। ये कहते हैं कि अगर ऑलरेडी फुल होता तो ये लड़का पैदाइशी क्रिमिनल तो नहीं है ना, तो ये क्रिमिनल कैसे बन जाता है? माहौल मिलता है, माहौल मिलता है
जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी कि नहीं, KGF, है ना? तो कुछ जगहों पर शुरुआत से नहीं देखा है, पागल है तो क्या कर रहे हो, KGF नहीं देखा, है ना? तो KGF में जो रॉकी भाई के पैदा होने का सीन है ना, अगर आप देखिए तो कितनी दयनीय स्थिति में होती है। और वो स्थितियाँ, अब देखिए वहाँ पर अगर आप समझेंगे तो दोनों स्थितियाँ बहुत सिमिलर हैं। माँ की जो स्थिति दिखाएगी वो स्ट्रगलिंग दिखाएगी, मतलब ये है कि बच्चा जब गर्भ में है तभी से वो फील कर रहा है स्ट्रगल होना क्या होता है। पैदा हुआ तो भी माँ को वो फील करना पड़ा, बच्चे को फील करना पड़ा, फिर लड़ना पड़ा। वो लड़ना ही काम हो गया, क्योंकि वो पैदाइशी रूप से जब से वो गर्भ में आया तब से माँ लड़ ही रही है, दूसरे तरीके से स्ट्रगल करके खुद को इस्टेब्लिश कर रही है। तो बच्चा भी बड़ा होता है, वो खुद को स्ट्रगल करता है और इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो समवेयर मेरा जो मानना है कि दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अंदर से सीख कर आते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर सीखते हैं। लेकिन ये कहना कि एंटायरली ब्लैंक होता है, मैं खुद भी एग्री नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से ब्लैंक होता है, पूरी तरह से ब्लैंक नहीं होता है। उसके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं जैसा इन्होंने कहा, और ये बात तो मानना पड़ेगा कि आउटर जो चीज़ें होती हैं उनका एक्सपीरियंस के ज़रिए हमारे ऊपर असर पड़ता है। जैसे एक दिन एक बंदे ने मुझसे पूछा कि ये बताइए आप इतना कूल रहना कहाँ से सीखे, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई चीज़ हो रही होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे कहा कि भाई जेनेटिक है, कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स से हमें मिल जाती हैं, तो जेनेटिक होती है। और वो मैं भी देखता हूँ, मेरे बच्चे में भी, वो बेटे में कूल माइंड वाला है, बेटी में नहीं है। बेटी तो रिवोल्यूशनरी टाइप की पैदा हुई है ना, क्रांतिकारी। और बेटा जो है ना वो उस लेवल तक ले जाना चाहता है जब तक चीज़ें बर्दाश्त होती हैं, नहीं बर्दाश्त होंगी तो फिर रिएक्ट करना है। आई थिंक समवेयर ही इज़ वेरी क्लोज टू मी इन दैट नेचर। बेटी तो बिल्कुल इस नेचर से मेरा वास्ता नहीं रखती है, पता नहीं शायद मम्मी पर गई है, तुरंत रिएक्ट करने वाले पर, है ना। तो आई मस्ट से कि ये जो पॉइंट्स होते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स से पाते हैं। हाँ, सारी चीज़ें पेरेंट्स की नहीं होती है ना, ये तो हमारा साइंस भी कहता है कि पूरा ना अपने पेरेंट्स पर न होते हैं, ना पूरे अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर होते हैं, ना मैटरनल पेरेंट्स पे होते हैं, ना मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पे होते हैं। लेकिन यस एग्जैक्टली कुछ न कुछ क्वालिटीज सारे ओर से हमारे अंदर आए होते हैं। देन कम्स दिस वन, द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। फिर बातें आती हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, जिससे मायने रखता है कि हम क्या पढ़ते हैं। एबोंट स्टडी इन मोर्स, है ना। फिर हम क्या पढ़ते हैं उसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छी चीज़ें क्यों कहा जाता है धार्मिक किताबें पढ़ो, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं। क्यों मना किया जाता है टीवीज़ मत देखिए ज़्यादा, मोबाइल मत चलाइए। अरे अभी आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो गया न्यूबॉर्न चाइल्ड को, बड़ा शॉकिंग था डॉक्टर्स को कि मतलब न्यूबॉर्न चाइल्ड को कौन सा टेंशन यार, द टेंशन दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। सो चाइल्ड इज नॉट एंटायरली ब्लैंक, वो तमाम वो प्रेशर फील करता है जो प्रेशर माँ फील कर रही होती है। इसलिए कहा जाता है माँ को लाइट मूड में रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि माताएं टीवी मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि कई बार ऐसे सीन क्रिएट हो जाते हैं, है ना, जिसमें आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस में चले। हम और आप कंट्रोल कर लेते हैं, बट द चाइल्ड इज़ नॉट इन दैट स्टेट टू कंट्रोल। तो वो पैदा होते उससे बदसूरी वाला ब्रेन हैमरेज हो रहा है उसको। तो दैट इज़ अ पॉइंट कि मुझे लगता है कि इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंडिंग होना चाहिए। ना एंटायरली कार्टेशियन फिलॉसफी सही है, ना ही एंटायरली लॉकियन फिलॉसफी सही है। दोनों फिलॉसफी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट एंटायरली ब्लैंक बॉर्न and it also gains a lot of knowledge through his reading, through his experience in our practical world. तो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट जॉन लॉक ने ये अपना थीम दिया था कि जो बॉर्न चाइल्ड होता है वो ब्लैंक माइंड के साथ होता है। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी उस ज़माने के लिए। इनके वर्क्स की बात किया जाए तो उसके पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, वॉल्टेयर ने इनको कहा था ली सेज लॉक।
Lee Sage Locke was a statement from Francois Marie Hérault, Voltaire. Thomas Jefferson wrote, इनके बारे में थॉमस जेफरसन ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, याद है? स्पेशली फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करते समय उन्होंने कहा, हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिया था, मैं उसको केवल रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो, ले चुके हैं स्टेटमेंट हम लोग। थॉमस जेफरसन ने कहा था, बेकन, लॉक एंड न्यूटन, I consider them the three greatest men that have ever lived, without any exception, as having laid the foundation of those superstructures which have been raised in a physical and moral sciences. ये स्टेटमेंट थॉमस जेफरसन का आया था, जो जॉन लॉक के बारे में उन्होंने कहा था। जॉन लॉक के 2-3 एसेज बड़े फेमस थे। एक एसे था इनका, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, an essay concerning human understanding. ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लाइफ पर, जैसे अभी हम लोग बात किया ना, ये ब्लैंक वाला पॉइंट, इसी में उन्होंने डिस्कस किया था। दैट अपीयर्ड इन 1689 एंड 1690, 1689-1690 में इसको अपीयर किया गया था। इसके बाद इनका एक और वर्क आता है, एंड दैट वाज सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, सम थॉट concerning education। आज की जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी को समवेयर इन्होंने भी रास्ता दिखाया था। 1693 में ये इनका वर्क आता है, 1693 में। और जॉन लॉक का एक और वर्क है, of the conduct of the understanding, of the conduct of understanding। एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है और एक स्टैंडिंग है, conduct of the understanding, that came in 1706। जॉन लॉक के बारे में एक बात और कहा जाता है, पॉसिबली ही हैड बीन द ट्यूटर फॉर चार्ल्स सेकेंड। जो चार्ल्स सेकेंड थे, जो किंग थे, बाद में किंग बने, उनके लिए इन्होंने ट्यूटर का काम भी किया था, उनको ट्यूशन भी दिया था, पढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय द कंडीशन वाज नॉट वेरी फेवरेबल एज दे वर गोइंग थ्रू द इंग्लिश सिविल वॉर। So he had been the tutor for Charles II। लेकिन बहुत हद तक इनका असर चार्ल्स सेकेंड पर दिखता नहीं है ना, लिबरलिज्म का दिखता है, क्योंकि इन्होंने वो बात जो लिबर्टी की थी ना, वो लिबर्टी यहाँ जीन जैक्स रूसो का वो थॉट था ना, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। स्पेशली जब जीन जैक्स रूसो ने अपना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्क लिखा था, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने इसे लिबरलिज्म की बात की थी, जिसको फाउंड किया था या स्थापित किया था जॉन लॉक ने। और ये थॉट थोड़ा सा वेरी करता है, बट सिमिलर है फ्रांसिस बेकन के। फ्रांसिस बेकन भी उसी थॉट से आते हैं जिस थॉट से जॉन लॉक हैं, जो मॉडर्नाइज फॉर्म उनका हुआ करता है। अब जैसे यहाँ पर ली सेज लॉक क्यों कहा वोल्टेयर ने, क्योंकि वोल्टेयर का मानना ये था कि जो
जॉन लॉक थे, इनकी थिंकिंग एक सेज की तरह थी। सेज कौन होता है? संत या सन्यासी, है ना। संत और सन्यासी का थॉट क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये एक संत की, जो सही मायने में जो सेज होता है, जो संत होता है, जो सन्यासी होता है, उसका यही थॉट होता है कि सब अच्छे रहें, सब खुशहाल रहें, सबकी समृद्धि हो, है ना। तो इस तरह के थॉट वाले, सब की बात करने वाला कौन होता है? लिबरल। कहते हैं ना हम बड़े लिबरल थॉट वाले। लिबरल थॉट का मतलब हो गया कोई हम भेदभाव नहीं करते हैं, सबका विकास होना चाहिए। तो एक तरह का डेमोक्रेटिक थॉट इन्होंने दिया था, और उस डेमोक्रेटिक थॉट को लिबरलिज्म से रिलेट किया था, जो बाद में चल के फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्पेशली रिफ्लेक्ट करेगा, जब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जीन जैक्स रूसो की राइटिंग का असर हमें देखने को मिलता है उस टाइम के वर्क्स पे। तो आज हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं, बाकी नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, क्योंकि अफ्रा बेन जल्दी नहीं कंप्लीट की जा सकती। जिस तरह की राइटर शी हैड बीन, तो थोड़ा सा उनके टाइम लग जाएगा, और आजकल क्लास को अपलोड करना पड़ रहा है ना। तो पढ़ाने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना बढ़ जाएगा फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होने लगेगा। दिस इज़ वाई आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद अफ्रा बेन, एंड अलॉन्ग विद अफ्रा बेन there would be some discussion on feminism as well. I think I had just mentioned this topic when I was discussing William Shakespeare, because he seems to be the one of the earliest writers concerning the women welfare, though he was not a woman. Here she is a woman, and she will consider everything favorable and unfavorable when it comes to be the women life, especially in this society. तो आज के लिए इतना ही, that's all, thank you.